Now we will discuss here topic number 1.6 जिसमें क्या आ जाएगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर. We will discuss here close pack structure. In case of solid state, suppose if you are interested to explain packing, then here means atom will be considered as a hard sphere. Atom is considered as a, we can say that, hard sphere, which is, we can say that, behave just like as a ball. And then if we are stacking or arranging these sphere, then here three different type of situation will come. One, we can say that one dimensional, one is one dimensional, and the second one is two dimensional, and third one is again we can say that three dimensional. तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ना, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स आर क्रिएटेड, वो अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है. क्लियर? तो चलो देखो, अभी जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ सी, तो क्लोज पैकिंग इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड the constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space, So let us consider the constituent particle as identical hard sphere and build up three-dimensional structure. Here we can say that three-dimensional structure in three steps. Clear? Here means what will happen? In case of solid, the constituent particles are close packed. Close packed matlab here packing will be again in such a way that distance between two spherical atom will be again, we can say that, minimum. Will be again, we can say that here means minimum. Clear? तो जैसे देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, on the basis of this arrangement, तो three different type of structure will come. One dimension, two dimension and three dimension. So now we will discuss here is one dimension. So close packing in one dimension. So there is only one way of arranging sphere in one dimension. In one dimension, close pack structure, that is to arrange them in a row and touching each other. यहाँ पे एक रो होना चाहिए and it will again be touch to, we can say that, each other. Clear? जैसे ये एटम है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम में भी प्रेजेंट, बट इट शुड बी अगेन टच टू, वी कैन से दैट, ईच अदर. और इसमें से एक लाइन पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, एक्सिस. इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद टू. हाँ देखो यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूं तो दिस इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो दिस वन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टू. हियर मींस वन सेंट्रल स्फीयर रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टू. क्लियर? द नंबर ऑफ nearest neighbor of particle is known as coordination number. Here one definition will come, that is, we can say that, coordination number. So what is coordination number? So if one cation is related with respect to one anion, तो coordination number will be 1. जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि ये NaCl है, for example this is NaCl. Here means coordination number of Na and Cl with respect to each other, it is 1. Clear? But here means MgCl2, तो one magnesium is related with respect to 2 chlorine. Here coordination number will be 2. Similarly, in case of AlCl3, the coordination number of aluminium will be 3. It means in another way, we can say that in one dimension, coordination number will be 2. मतलब here means central atom is related with respect to two atom. So this is, we can say that, coordination number will be 2. So this is C figure which will explain arrangement of hard sphere or spherical atom with respect to one dimension. Clear? तो one dimension में आपको क्या करना है, you have to remember
डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को क्या बोलने का, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू anion. One cation is again related with respect to how many anion. Clear? Here first topic is completed. Now we will discuss close packing in two dimension. Now we will discuss here means close packing in two dimension. तो देख टू डायमेंशन में जैसे देखो ये है, तो यहाँ पे ये लेयर है, तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ हार्ड स्फीयर, ए है, ए है, ए है, और ये भी आपका ए, मतलब एक के जैसा। इसमें नंबर ऑफ लेयर विल बी अरेंज वन अपॉन अनदर वन, अनदर टू थर्ड वन। उसके बाद व्हेनेवर वी आर जॉइनिंग सेंट्रल वन, सेंट्रल पार्ट, तो हियर वी कैन से दैट सी फोर स्फीयर विल टच टू ईच अदर, और जो ब्लैंक स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। हियर में सी दिस इज स्क्वायर शेप विल फॉर्म, हियर वी कैन से दैट स्क्वायर शेप विल फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। क्लियर? तो इधर पे देखो ए ए ए, तो दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ सेकंड सिचुएशन, तो देखो ये ए है, लेयर ए, अब ए के दो एटम के बीच में हम लोग ये बी वाला रखते हैं, उसको कैविटी बोलते हैं, इंटरस्टिसेस। तो दो एटम के बीच में ये बी, तो ये बी 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 लेयर आया। उसके बाद जो थर्ड लेयर आता है, इट इज सी थर्ड लेयर, बट विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट इट विल बिहेव जस्ट लाइक एज द फर्स्ट लेयर। सिमिलरली फोर्थ लेयर, मतलब ये सीक्वेंस ऑफ एटम of first and third will remain same and 2 and 4 will remain same, इसलिए रिपीटिंग लेयर क्या आएगा, ए बी विल बी देयर। अब चलो इसमें आप यदि सेंटर को ज्वाइन करो, इधर पे हेक्सागोनल क्लोज पैक विल बी देयर, हियर वी कैन से दैट हेक्सागोनल को क्लोज पैक विल बी देयर। क्लियर? इन दिस वे टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग विल बी देयर। इसका मतलब यदि रिपीटिंग लेयर ए है, तो ये स्क्वायर क्लोज पैक विल फॉर्म, और रिपीटिंग लेयर ए बी है, हियर दिस हेक्सागोनल क्लोज पैक विल फॉर्म। Here coordination number will be 4 and here coordination number will be 6. So in case of two dimension, here in this way, so two different type of arrangement will come, square close pack and as well as hexagonal close pack. तो चलो close packing in two dimension arrangement, in two dimensional close pack structure can be generated by stacking बोलो या placing बोलो। Here we can say that stacking or placing the rows of close packed sphere, and this can be done in two different ways. Here means two different ways are there. तो यहाँ क्या आएगा, see the second row, देखो यहाँ पे the second row may be placed in contact with first one. ये देखो first one मतलब जो A है वैसे ही दूसरा आएगा। Clear? Such that the sphere of second row are exactly above. देखो A के ऊपर ही सब के सब एक दूसरे के ऊपर आते हैं। Clear? The sphere of the two rows are aligned horizontally as well as vertically. यदि यहाँ पे अरेंजमेंट देखो, here means horizontal and vertical arrangement will remain same. This is horizontal and then after we can say that vertical arrangement will remain same. Whenever we are arranging, here means horizontal as well as vertical arrangement will remain same. If we call the first row as A type row, if we call first row as A type row and second row being exactly the same, second row exactly the same as the first one is also of A type, so similarly we may place more rows to obtain A type of arrangement as shown in figure A. Here means more than two layers are possible. Here we can say that more than two layers are possible, and whenever more than two layers are possible, so what will happen? Here means see, so one central atom is surrounded with four atoms. One central atom is surrounded with four atoms. Here coordination number will be 4. मतलब one cation is related with respect to 4 anion. Here we can say that coordination number will be 4. Clear? तो ये है आपका square close pack is there. Clear?
नाउ नेक्स्ट वन, अब आता है सेकंड रो. The second row may be placed above the first one in staggered manner such that its sphere fit in the depression of the first row. तो देख इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये है 1 2 3 4 5, ये लेयर ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस है, ये कैविटी है, तो ये इसका मतलब ये बी, तो दिस इज लेयर बी. मतलब with respect to arrangement, here layer A and B is totally different. Clear? So the second row may be placed above the first one in a staggered manner such that its sphere fit in the depression of the first row. इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं. डिप्रेशन मतलब ब्लैंक स्पेस. क्लियर? If the arrangement of sphere in the first row is called A type, इसको हम लोग A टाइप बोलते हैं. The one in second row is different and called B type. If the arrangement of sphere in first row is known as A type, the one in the second row is different and may be called B type. And when the third row is placed adjacent to the second in staggered manner, its spheres are aligned with those of the first layer. Hence, this layer is also known as A type. चलो अभी क्या हुआ, ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर. अब जो थर्ड लेयर है वो विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट, देखो कहने के लिए तो देखो दिस इज 1, दिस वन इज 2, तो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर दिस इज नॉर्मली नोन एज थर्ड, बट विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट here we can say that 1 and 3 is same, तो इसको भी A बोलते हैं और इसको भी A बोलते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट, देखो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर हियर थर्ड नंबर विल कम, बट विथ रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट हियर वी कैन से दैट 1 and 3 बोथ आर सेम. अब चलो फोर्थ आएगा, तो फोर्थ कैसा होगा, सी. हियर वी कैन से दैट फोर्थ लेयर विल कम, तो यहाँ पे देखो ये कलर से देखो कलर, तो फोर्थ लेयर मतलब B इज देयर, तो यहाँ पे सी A B एंड देन आफ्टर A B विल कम हियर. यहाँ पे सी 1 2 3 4, तो ऐसे में देखने जाऊं तो यहाँ पे 1 सी 1 and 3 is same and 2 and 4 is same here. Here repeating level will be AB AB will be there. Repeating layer will be AB AB. अब यदि मैं यहाँ पे क्या करूं, सबके सेंटर को ज्वाइन करूं, सबके सेंटर को यदि आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 और शेप कैसा बना, हेक्सागोन, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पेग. तो दिस इज रीजन व्हाई इट इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज हेक्सागोनल. वी कैन से दैट क्लोज पेग अरेंजमेंट. हेक्सागोनल क्लोज पेग अरेंजमेंट इज देयर. देखो यदि आपका ए आता है, यदि ए है, हियर वी कैन से दैट स्क्वायर क्लोज पेग. और यदि आपका सी क्या आ गया, हियर ए बी, तो दिस इज नॉर्मली नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पेग. ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पेग. क्लियर? दिस वन इज हेक्सागोनल क्लोज पेग एंड दिस वन इज अगेन स्क्वायर क्लोज पेग. क्लियर हुआ? तो द स्फीयर ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड फोर्थ रो, इधर पे फोर्थ रो विल बी अलाइन विद दोज ऑफ द सेकंड रो. सेकंड मतलब बी टाइप. तो आपका जो फोर्थ वाला है इट इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वन, मतलब सेकंड एंड 4 विल रिमेन सेम एंड 1 and 3 विल रिमेन सेम. हेंस दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप. So this type of arrangement is again means AB type. In this arrangement there is less free space. यदि मैं hexagonal closed pack में बात करूं तो as compared to square, hexagonal closed pack में free space, तो here means free space or vacant space or cavity will be less. In case of square closed pack, here we can say that free space, so free space will be more, here free space will be less. In case of hexagonal closed pack arrangement, free space will be less, while here this free space will be more. Clear? So now
उसके बाद यहाँ पे सी in this arrangement there is less free space and this packing is more efficient than the square close peg, and here coordination number will be 6. Here coordination number will be 6. So due to 6 coordination number, it is also known as hexagonal close peg. It is also known as hexagonal close peg is there. Clear? तब देखो मैं स्क्वायर प्लेनर बोलूं या HCP बोलूं, दोनों क्या हो गई? टू डायमेंशनल. तो कैसे टू डायमेंशनल? हियर मींस टू डिफरेंट टाइप ऑफ मींस एक्सिस विल बी देयर, x एक्सिस एज वेल एज वी कैन से दैट y एक्सिस. देख जैसे यदि मैं एक्सिस पास करूं तो देखो ये क्या आ गया? x और ये क्या आ गया? y. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल वी कैन से दैट अरेंजमेंट. क्लियर? टू डायमेंशनल अरेंजमेंट. तो सी तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन. तो देखो आपको है ना वन डायमेंशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितने भी स्फीयर हैं तो दे आर रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वी कैन से दैट हार्ड स्फीयर. हार्ड स्फीयर स्फेरिकल इन शेप, तो अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू आइदर स्क्वायर क्लोज पैक और विथ रिस्पेक्ट टू हेक्सागोनल क्लोज पैक. तो या तो स्क्वायर होगा या तो हेक्सागोनल क्लोज पैक. In case of square क्या आता है? Here means A will be there. Either A B will be there. Here A. Here we can say that A layer will be there, and then after AB will be there. If A will be there, the square close peg will form, and AB will be there. Here means hexagonal close peg will form here. In case of HCP, free space will be less as compared to we can say that square close peg. तो ये है पूरा अरेंजमेंट ऑफ एटम. बट अभी मैंने आपको वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन बताया. अब जो थ्री डायमेंशन है वो कैसा होगा? जैसे सी इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन, हियर मींस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल कम कि थ्री डायमेंशन भी टू डायमेंशन जैसा ही है. यदि मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं तो दिस इज अगेन रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन. देखो क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, तो दिस वन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन, बट यहाँ पे रिपीटेशन होता है. हियर वी कैन से दैट रिपीटेशन ऑफ थर्ड लेयर. तो रिपीटेशन ऑफ थर्ड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक एंड रिपीटेशन ऑफ थर्ड लेयर with respect to three dimensional hexagonal close peg. तो आपका 3D में क्या होगा? तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन विल बी देयर. रिपीटेशन ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक, तो दिस इज वी कैन से दैट स्क्वायर क्लोज पैक, एंड रिपीटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक विल बी देयर. मतलब देख जैसे ये स्क्वायर है तो ये तो एक हुआ. अब ऐसे ही मैं नंबर ऑफ स्क्वायर ले लूं, जैसे आपका नोटबुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है ना. ऐसे देखो एक के ऊपर ऐसे बहुत सारे पेज ले लो, ये स्क्वायर है, इट विल ऑक्यूपाई थ्री डायमेंशनल स्पेस. इट विल ऑक्यूपाई थ्री डायमेंशनल स्पेस. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटेशन ऑफ थर्ड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर क्लोज पैक. और ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? तो रिपीटेशन ऑफ थर्ड लेयर विथ रिस्पेक्ट टू हियर वी कैन से दैट हेक्सागोनल क्लोज पैक विल बी देयर. हेक्सागोनल क्लोज पैक विल बी देयर. क्लियर? अब इसी के ऊपर से यहाँ पे क्या आ जाता है? हियर वी कैन से दैट व्हेनेवर वी आर अरेंजिंग एटम, हियर मींस सी टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग विल कम. हियर मींस व्हाटएवर कैविटी विल फॉर्म, इट मे बी आइदर octahedral or we can say that tetrahedral. Either we can say that octahedral or tetrahedral. तो ऑक्टाहेड्रल में सी कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 और टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. यहाँ पे एक कैटायन के पास 4 एनायन होता है. टेट्राहेड्रल में वन कैटायन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू 4 एनायन. इधर पे एक कैटायन के पास 6 एनायन विल बी देयर. क्लियर? तो आपको देख न्यूमेरिकल में सब आएगा. कोई भी क्यूब लो, कोई भी क्यूब लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल cavity will be 1 and number of tetrahedral will be always 2.
कोई भी क्यूब आप लेते हैं ना, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कैविटी विल बी 1 एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कैविटी विल बी 2। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 3D में बाद में बताया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है।